ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕਰੀਏ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਮਖਲੂਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ। ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਬਰ ਉਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖਬਰ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ। ਇਹ ਭਗਤ ਹਨ ਜੋ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿਛਾਂ ਵੱਲ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਵਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲੈਣਾ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੂਬਹੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ। ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂ? ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਘਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਘਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो मैनू एक छोटी जी गल याद आ गई, छोटी जी गल। अकबर दे दरबार दे विच 9 इस तरह के कलाकार सी जिन्होंने रतन की उपाधि मिली सी। ये मेरे दरबार दे विच 9 रतन हैं, जिहदे विच एक सी अमीर खुसरो और दूजा तानसेन भी सी संगीतकार। और तानसेन दे सामने बाकी दी गायकी सारियां दी फैल तानसेन दे सामने। और आप जी नूं मैं अर्ज करा, तानसेन दा जो गुरु सी वो सी हरिदास, जो कि बिंद्राबन मथुरा रहिंदा सी। और हरिदास दा जो गुरु सी वो भाई मर्दाना, भाई मर्दाना जी तो तालीम लई हरिदास ने, हरिदास तो तालीम लई सी तानसेन ने। एक दिन अकबर बादशाह कहता है, ऐ तानसेन तेरी गायकी दे सामने तो हर एक दी गायकी फिकी है, हर एक दी। पर मैं एक गल पूछना चाहता कि कदे तू अपने गुरु की गायकी भी मैंने सुना, तेरा गुरु किस तरह गाता है उसकी गायकी मैंने सुना। तानसेन हंस पिया और कहन लगे, बादशाह सलामत, मेरे गुरु की गायकी तू नहीं सुन सकता है। उसका कारण यह है कि मैं गा सकता हाँ तेरे हुक्म ते, उसनों किसी के हुक्म की परवाही नहीं आती। वह जी करता है अद्धी रात न उठ के तो शुरू कर देता है गीत संगीत, अकेला बैठा होंदा है। जदों जी करता है संगीत छिड़ देता है, जदों जी करता है सुता रहिंदा है। तो उन्होंने आप जी के हुक्म की भी परवाह नहीं है। अकबर कहता है, तानसेन फिर एक गल दस मैनू, जे उहदी गायकी सुननी होवे तो की करना पेगा। तो तानसेन कहता है, एक काम करना पेगा, जिथे मेरे गुरु हरिदास की झोंपड़ी है उहदे नाल ही असीं छिप के बैठ जाते हाँ, जद वो गाएगा सुन लेना। फिर वो कद गाउंदा है, कल परसों अज कोई पता नहीं है। कहने लगे ठीक है। अकबर बादशाह ते तानसेन दोवें ही जाके छिप के बैठ जाते हैं।
छिप के बैठ जाते हैं और अद्धी रात का वक्त होंदा है, हरिदास अपनी गायकी शुरू करता है। ध्यान देना, फिर मैं मूल शब्द ते आउना। जदों हरिदास ने गायकी शुरू की थी, अकबर बादशाह रो पिया। तानसेन एक ही है, ये तेरा गुरु है? हाँ महाराज, मेरा गुरु है। चंगा, चलते आओ महलों विच। अकबर ने एक शब्द भी नहीं बोलिया, एक अल्फाज भी नहीं बोलिया और अपना सफ़र पूरा किया। जो महलों ते जान लगे, पौड़ियां ते चढ़न लगे, तो पौड़ियां ते चढ़दियां चढ़दियां अकबर बादशाह कहंदा है तानसेन, एक गल दस मैनू, तेरी गायकी दे विच और तेरी गुरु दी गायकी विच इतना अंतर क्यों है? तेरी गुरु दी गायकी दे सामने तेरी गायकी फिक्की है, इतना फर्क क्यों है? तो तानसेन ने की जवाब दिता? कहन लगे, महाराज फर्क तो होना ही होना है। मैं गाउंदा हाँ तैनू खुश करने वास्ते, मेरा गुरु गाउंदा है उन्होंने खुश करने वास्ते। बस इतने जी गल है। मेरी गायकी इसे करके फिक्की पै जाती है कि मेरा ख्याल रहता है कि जितनी गायकी चंगी होवेगी इनाम उतना चंगा मिलेगा। और मेरा गुरु गाउंदा है कि परमात्मा ने उहदियां जेबां पहलां ही भर दित्तियां ने, वो शुकराने के तौर पर गांदा है, धन्नवाद के तौर पर गांदा है। तो मैं अर्ज करा, जदों भी नितनेम करो, जदों भी पाठ करो, जदों भी सिमरन साधना करो, ये धारणा रख के कि शुकराने वजों कर रहे हैं, धन्नवाद वजों। वह आनंद फिर होर देखना, वह आनंद कुछ हो रहा। धन गुरु नानक साहिब महाराज इस पावन बोल विच जगत नूं एक संदेश देंदे ने। संदेश की कि मनुख दे जीवन विच जिहड़ी मंजिल है, जिस मंजिल ते पहुँचना है, उस मंजिल की खबर होनी चाहिए। मेरी मंजिल की है, मेरा टारगेट की है, मेरा निशाना की है। जे मैं आप जी नूं पुछ लवां, आप जी की मंजिल की है, आप जी क्यों आए हो जगत विच, तो गुस्ताखी माफ़ कईयां नूं तो पता भी नहीं है क्यों आए हैं। मैं एक बीबी नूं सवाल किया, सवाल ये किया कि तुसी इतने पढ़े लिखे हो, तुसी टीचर हो, मैनू एक सवाल का जवाब दवो, रब ने सानू रूहे ज़मीन ते क्यों भेजिया, असी क्यों आए हैं? तो उन्होंने जवाब की दिता, कहन लगे, ज्ञानी जी असी तो सुटे गए हाँ, बस रब ने सानू सुट दिता है जमीन ते। मैं क्या नहीं, असी सुटे नहीं गए हाँ। इस गल नूं गहराई दे नाल समझना कि परमात्मा ने रहमत करके, तरस करके सानू ये मनुखी जामा बख्शिया है और नाल ये कह देता, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। सुटे नहीं गए हाँ, निरंकार नूं मिलन दी तेरी वारी, तेरा समा है, तेरा मौका है, तेनों मौका दिता जा रहा। तो जिसनों इस गल की खबर है कि मेरी मंजिल की है, फिर उसनों ये भी खबर होनी जरूरी है कि जिस मंजिल तक मैं पहुँचना है, मेरी मंजिल की दिशा केड़ी है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो मनुख भटक रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भटक रहा है कि मेरी मंजिल केड़ी दिशा विच है। जदों उसनों दिशा की भी खबर मिल गई, मंजिल की भी खबर मिल गई, फिर तीजा पड़ाव होंदा है कि मैं अपने मंजिल ते पहुँचने वास्ते मार्ग किहड़ा चुनना है, उस मार्ग की भी समझ होनी चाहिए है। ये मेरा मार्ग है, इस मार्ग ते मैं सफ़र करना है और मैं अपने मंजिल ते पहुँच जाना है। ये तीन गल्लां चेते रखना,
मंजिल की खबर, दिशा की खबर, मार्ग की खबर। जे मार्ग की खबर नहीं है मनुख भटक जाता है, जे दिशा की भी खबर नहीं है मनुख भटक जाता है, जे मंजिल की भी खबर नहीं है भटक जाता है। हुण सानू कौन दसेगा साडी मंजिल केड़ी है? सानू कौन दसेगा मंजिल की दिशा केड़ी है? सानू कौन दसेगा कि उस मंजिल की दिशा ते मार्ग केड़ा है? कौन दसेगा? कहते ने सानू फिर लोड़ पैंदी है गुरु की, गुरु की लोड़ पैंदी है। फिर गुरु दे जिहड़े बोल होंदे ने वो इस तरह के होंदे ने। एक छोटा जिहा मैं उदाहरण आप जी के सामने रखा। गुरु के बोल इस तरह के होंदे ने, पर सुनन वाले जिहड़े होंदे ने वो किस तरह के होंदे ने, ये देखना। आप जी अपने आप नू पुछ भी लेना कि साडी गिणती किहड़े श्रोते विच है। 4 किस्म के श्रोते होंदे ने, 4 किस्म। महात्मा बुद्ध एक गल कहंदे सी कि 4 किस्म के घोड़े होंदे ने, जिन्हां दे विच एक किस्म उन्हां घोड़ियां दी होंदी है जिन्हां नूं हंटर मार मार के चलाना पैंदा है। हंटर मार मार के, जदों तक वो हंटर की चोट नहीं खाते उदों तक वो नहीं चलते, रुकते ने, फिर हंटर की मार, फिर चलते ने 2 कदम, फिर रुक जाते हैं। पहली किस्म। दूजी किस्म उन्हां दी है कि जिन्होंने केवल ते केवल हंटर दिखाना पैंदा है, मारन की लोड़ नहीं पैंदी। हंटर की आवाज़, वो घोड़े चलते रहते हैं, चलते रहते। कहते ने तीजी किस्म उन्हां दी है जिन्होंने हंटर की आवाज़ की भी लोड़ नहीं पैंदी, बस केवल हंटर हथ विच होना चाहिए है, तुरते रहते हैं घोड़े। और चौथी किस्म उन्हां दी आउंदी है कि जिहड़े अपने धुन विच चलते रहंदे ने, उन्हां नूं किसी हंटर की लोड़ ही नहीं पैंदी, चलते रहंदे ने। हुण गुस्ताखी माफ़, आप जी किहड़ी किस्म के श्रोते हो ये दसो? जो हंटर दी आवाज़ नाल चलदे हो, जां चोट नाल चलदे हो, जां इशारे नाल चलदे हो, जां हंटर की लोड़ भी नहीं तां चलदे हो। पर गुस्ताखी माफ़, बहुत सारे तो ऐसे ने जिन्होंने वार वार हंटर मारना पैंदा है, मारना पैंदा है, तां चलदे ने, तां चलदे। तो बुले शाह कहंदा है कि गुरु के जिहड़े बोल होंदे ने वो इशारे होंदे ने, और इशारे नूं समझ के मनुख तुर पैंदा है, मंजिले मकसूद ते पहुँच जाता है। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे ने, जिस जल निध कारण तुम जग आए। मूल गल कह दी। आप जी की मंजिल की है? गुरु साहिब कहंदे ने जल निध। एक पानी वो है जो अग बुझाता है, वही पानी मनुख की प्यास बुझाता है। लेकिन एक प्यास ऐसी है जो इस पानी नाल नहीं बुझदी। मैं फिर गल दोहरा देवां, जिहड़ी तन की प्यास है पानी नाल बुझ जाती है, लेकिन मन की प्यास वखरी है। तन की भुख वखरी है, मन की भुख वखरी है। तन की भुख है रोटी और तन की प्यास है पानी। मन की भुख है दौलत और मन की प्यास है रूप। रूप हर वेले मनुख प्यासा है, मैं रूप वेखां, गुस्ताखी माफ़। हर वेले भुखा है, मैनू धन होर चाहिदा है, होर चाहिदा है, होर चाहिदा है। और ये भुख कदे मिटदी नहीं। कितनी ही दौलत पई होवे, कदे भुख मिटदी नहीं, नहीं मिटदी। सिकंदर दी मैनू एक गल याद आ गई। आप जी ने
नील नदी का नाम सुनिया होगा। ये पश्चिम वाल दरिया वगदा है, नील नदी। ये साडे मुल्क विच नहीं है, ये पश्चिम वाल है। मेरे ख्याल दे मिश्र दे इलाके विच वगदी है नील नदी। सिकंदर ने अपनी आत्म कथा विच लिखिया कि जदों मैं नील दरिया दे करीब पहुंचया तो जितने भी मेरे फौजी सन, जितने भी सैनिक सन, सारियां दे हथ विच तेग सी, तलवार सी। लुटते जा रहे सी, पिंडां दे पिंड लुटते जा रहे सी, तबाह करते जा रहे सी और पदार्थ इकट्ठे करते जा रहे सी, क्योंकि धारणा इको ही सी कि सारे मुल्क नूं जितना है, विश्व विजेता बनना है। धारणा सी। कहते ने नील नदी दे कंढे जदों मैं रुकिया, मैं एक अजीब हरकत वेखी। बहुत सारे लोग खड़े हैं फूल मालावां लैके। सिकंदर कहता है मैं ये सब कुछ वेख के हैरान हो गया। साडे हथ विच तलवार है, असी लुटना है, कतलेआम करना है, तो ये फुल्लां दी माड़ा लैके स्वागत करते पे ने साडा। हद हो गई। कोई ना कोई जरूर कमजोरी है, कोई ना कोई गड़बड़ी है। ये फुल लैके खड़े ने, सारियां दे गल विच फूल माला पाई ते सारियां ने हथ बन के कहा सिकंदर बादशाह चंगा होएगा पहला भोजन छक लो, बैठ जाओ। सारियां वास्ते सिंहासन सजाए हुए ने, भोजन छक लो। सिकंदर बादशाह कहता है असी लुटन आए हैं तुहानू ते तुसी सानू भोजन छकांदे पे हो। लुटना है आप जी नू। ते ओ पिंड वासी की कहते ने बादशाह सलामत, लुटन की लोड़ की है, असी अपने आप ही दे देवांगे सब कुछ। तलवार चलाने की लोड़ ही नहीं है, मार काट करन की लोड़ ही नहीं है, सब कुछ असी अपने आप ही दे देवांगे, अपने आप। पर साडा फर्ज बनता है कि बड़े सिदक नाल, बड़े प्यार दे नाल आप जी का स्वागत करिए, लंगर छकाइए, सब कुछ दे देंगे। चंगा, सारे बैठ गए। सब तो पहला थाल सिकंदर बादशाह वास्ते आया। एक बुजुर्ग माई और पिंड का एक चौधरी, बुजुर्ग चौधरी। थाल सामने रखिया, हथ बन के अर्ज की बादशाह सलामत खाओ, भोजन छको, भोजन छको। ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि कथा ध्यान मंगदी है। और ये जो शब्द हैं, शब्दां दी चोट इतनी गहरी होंदी है, इतनी गहरी होंदी है कि किसी न किसी मौके ते, किसी न किसी वक्त वो शब्द चेते आ जाते हैं। ये ना समझ लेना कि ये कथा असी भुल जावांगे, मनुख भुल ही नहीं सकता। शब्द कदे गवाचदे नहीं, क्योंकि शब्द खला विच मौजूद रहंदे ने, मौजूद रहंदे ने, मौके ते याद आ जाते हैं। फलाने बंदे ने यह गल आखी सी मौके ते। एक मैं गल ये नाल होर जोड़ दवां, क्योंकि मैंने भुल जाएगी गल फिर। जो असी बोल बोलते हाँ, भावें चंगे बोल होण, भावें मंदे बोल होण, किसी नूं भी असी बोल बोले ने, भावें चंगे बोल बोले ने, भावें मंदे बोल बोले ने, वो बोल इस खला विच मौजूद रहंदे ने। वो बोल कदे खत्म होंदे ही नहीं, शब्द कदे मिटदे ही नहीं। और वो शब्द आप जी का पिछा करते हैं। जे चंगे बोल बोले हैं, वो चंगे बोल आप जी का पिछा करनगे। मंदे बोल बोले हैं, वो भी आप जी का पिछा करनगे। चंगे बोल आप जी नूं सुकून देणगे, मंदे बोल आप जी नूं तकलीफ देणगे, पर खला विच मौजूद रहंदे ने। और जिन्हां दे प्रति माड़े बोल बोले गए ने, उन्होंने तो बोल कबूले ही नहीं। उन्होंने कह दिता मैं तेरे बोल कबूले ही नहीं।
जे उसने नहीं कबूले वो बोल आप जी के आले दुआले घूमते रहणगे सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। चंगे बोल भी, मंदे बोल भी। तो बुजुर्ग माई ने जो वो थाल सजा के सामने रखिया कहन लगे महाराज भोजन छको। सिकंदर ने उस थाल का कपड़ा हटाया और उस थाल नूं देखदा रहा, देखता रहा। रो पिया सिकंदर। रोंदे होए की कहंदा है पिंड दे चौधरी नूं, ਇਹ ਕੀ है? एक कटोरी विच की है, दूजी कटोरी विच की है, ते थाल विच की है? फकीर कहंदा है महाराज एक कटोरी विच हीरियां दी सब्जी है, हीरे, दूजी कटोरी विच मोतियां दी सब्जी है। और जिथों तक रोटी की गल है, रोटी की थां ते असीं 5-6 टुकड़े सोने दे पाए ने ते 5-6 टुकड़े चांदी दे पाए ने, छको छको महाराज। सिकंदर कहंदा है हीरियां दी सब्जी कदे किसी ने खाधी है? भुख मिटांदी है हीरियां दी सब्जी? ये सोने दे टुकड़े किसी दी भुख मिटांदे ने? तो पिंड दा चौधरी कहंदा है महाराज जे किधरे रोटी दे नाल भुख मिटदी होंदी तां तेरे मुल्क विच बहुत रोटियां सन, इत्थे धक्के खाण दी लोड़ ही नहीं सी। फिर जे भुख ही मिट गई होंदी रोटी नाल, इत्थे आण दी लोड़ ही नहीं सी तैनूं। सिकंदर कहंदा है हुण वापस चलो, वापस चलो। समझ आ गई शब्द दी चोट लगी है। वाकई कितना भी सोना आप जी दे कोल पिया होवे भुख नहीं मिटाएगा, कितने भी हीरे मोती पए होण वो भुख नहीं मिटा सकते, प्यास नहीं मिटा सकते। तो मनुख की जिहड़ी प्यास है, तृष्णा है, वो किवें मिटेगी? किवें मिटेगी? क्योंकि एक गल होर चेते रखना, क्योंकि जदों कोई मनुख रूहे जमी तो रुखसत करता है, चला जाता है, असी अरदास करते हैं। और अरदास दे बोल की होंदे ने? महाराज सदीवी लई उन्होंने अपने चरनां नाल जोड़ के रखना, 84 दे गेड़े तो बचावना, असी अक्सर कहते हैं। तो एक संत कहंदा सी तुसी तां अरदास कर छड्डी, लेकिन उन्होंने भी तां पुछ के वेखो वो मुक्त होना भी चाहुंदा है जां नहीं, उन्होंने भी तां पुछ के देखो। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि उहदे कोल तृष्णा है, वो मुक्त नहीं होना चाहता। उहदे कोल प्यास है। साहिब कहंदे ने कि ये जिहड़ी प्यास है यही मनुख नूं वार वार खिच के लिआंदी है, वार वार खिच के लिआंदी। किसी नूं धन की प्यास है, वो प्यास खिच के लिआंदी है। किसी नूं धीआं पुत्रां की प्यास है, वो खिच के लिआंदी है। तो साहिब कहंदे ने कि ये जिहड़ी आसा है, जिहड़ी मनशा है, बस यही मनुख ने नूं खिच के लिआंदी है, बन के लिआंदी है। फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म। बाणी इसनूं कहंदी है वासना बद्धा आवे जाए, वासना बद्धा आवे जाए, वासना खिच के लियाई। जदों असीं जिक्र करते हाँ ध्यान का, ध्यान किस नूं कहंदे ने? तो ध्यान की एक ऐसी अवस्था है जिथे वासना खो जाती है, और उत्थे मनुख कहंदा मैनूं कुछ नहीं चाहिए। कबीर साहिब दा बोल आप जी दे सामने रखा। कबीर साहिब कहंदे ने चाह गई चिंता मिटी। चिंता का मूल कारण की है? चाहत। चाहत है वो चिंता नूं जन्म देंदी है। चाहत, और चाहत ही मनुख दे जीवन विच झगड़े करांदी है। चाहत। कबीर साहब कहंदे ने चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको किछ ना चाहिए सोई शहनशाह।
ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह। ਆਚਾਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਸੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗੀ, ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਰੋਵੋਗੇ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੋਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਐਸੇ, ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਗਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ। ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਗਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਰਗਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ। ਸਰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ